حاصل میں اضافے کے لیے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ شوگر انڈسٹری، اسٹیل، سیمنٹ، تیل اور گیس، کھاد، LNG ٹرمینل، بینکاری، آٹو موبائل، سگریٹ، کیمیکلز اور بیوریجز کی صنعتوں پر 1 سال کے لیے سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ سالانہ 15 کروڑ سے زائد آمدن والوں کو 1% تخفیف غربت ٹیکس دینا ہوگا۔ 20 کروڑ سے زائد پر 2%، 25 کروڑ پر 3%، 30 کروڑ سے زائد آمدن پر 4% ٹیکس عائد ہوگا۔ ملک کو سنگین خطرات سے بچانے کے لیے اتحادی حکومت نے سخت فیصلے کیے۔ ہم نے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا۔ مشکلات مختصر مدت کے لیے ہیں۔ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ ہمیشہ مشکل وقت اور چیلنجز میں غریب آدمی نے قربانی دی، اب صاحب ثروت افراد کو قربانی دینا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کا گوادر کا دورہ، مختلف منصوبوں کے بارے میں بریفنگ۔ PSDP میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ 100 ارب روپے مختص۔ گوادر میں ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے 2000 انجنز فراہم کیے جائیں گے۔ 200 ایکڑ پر مشتمل کالونی بھی بنے گی۔ گوادر یونیورسٹی کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی۔ پینے کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ گوادر کو ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا معاہدہ طے پا چکا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان کو چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول۔ مشکل فیصلوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ موجودہ مالی سال میں پرائمری خسارہ 1600 ارب روپے رہا۔ مؤثر اقدامات سے آئندہ سال میں اسے 153 ارب روپے سرپلس کریں گے۔ مجموعی بجٹ خسارہ بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ کسی کے خلاف سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، مگر اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنے والوں کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے۔ عمران خان نے سیاست کو آلودہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 20 سال تک ورلڈ کپ لے کر گھومنے والا اب 20 سال تک جھوٹ پر مبنی خط لے کر گھومے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ پنجاب میں مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ 4000 سے زائد یونین کاؤنسلز کو 55 ارب روپے کے فنڈز دیے جائیں گے۔ سڑکوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے لیے 50 ارب خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ صوبے کے تمام ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی، طالب علموں کو لیپ ٹاپس اور خواتین کو سکوٹیز دینے سمیت متعدد اقدامات کا اعلان۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے پر کام تیز کرنے پر اتفاق۔ BRT ریڈ لائن ڈپو کا مسئلہ حل کرنے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزیر کی MQM پاکستان کے رہنماؤں سے بھی ملاقات۔ پاک بحریہ نے بہادری اور قربانیوں سے تاریخ رقم کی ہے۔ ملکی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیوی وار کالج لاہور میں خطاب۔ جیو اسٹریٹجک صورتحال، قومی سلامتی سے متعلق چیلنجز اور اقدامات پر تفصیلی اظہار خیال۔ افغانستان میں بدھ کو آنے والے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ یورپی یونین کا متاثرین کے لیے 10 لاکھ یورو امداد کا اعلان۔ پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ۔ غلام خان اور انگور اڈا کراسنگ پوائنٹس کو شدید زخمیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند کو ٹیلی فون، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، تجارت اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ افغانستان کی صورتحال اور اہم امور پر بھی گفتگو۔ ملاقات روانڈا میں دولت مشترکہ سربراہ اجلاس کے موقع پر۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، گھر گھر چھاپے اور محاصرے کی کارروائیاں، ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات، عالمی برادری کی افسوسناک خاموشی برقرار۔ یورپی رہنماؤں کا برسلز میں اجلاس، روس کی جانب سے گیس کی بندش اور اقتصادی صورتحال اہم موضوع۔ روسی اقدامات سے 12 یورپی ملکوں کو توانائی بحران کا سامنا، یورپی یونین اور ماسکو کے مابین تناؤ میں اضافہ۔
امریکی سینٹ نے ہتھیاروں کے قانون میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ 65 ارکان نے بل کی حمایت جبکہ 33 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ گن خریدنے کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال کر دی گئی۔ ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ اتوار کو 14 اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی گہما گہمی عروج پر۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی۔ کراچی میں جرائم کی روک تھام کے لیے اہم کاوش۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے ضلع بستی کے تھانوں کی نگرانی کی جائے گی۔ پولیس اسٹیشنز میں کیمروں کے ساتھ پیٹرولنگ، موٹر سائیکلوں میں ٹریکنگ سسٹم نصب۔ لاہور میں پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے اہم فیصلے۔ ریڈ اور وائٹ بال کے لیے علیحدہ سینٹرل کانٹریکٹ ہوں گے۔ تینوں طرز کی کرکٹ میچ فیس میں 10% اضافہ۔ ویمنز سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کے معاوضے میں 15% اضافہ ہوگا۔ کوریا میں ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ، پاکستان کے شاہزیب خان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ فرینکفرٹ میں عالمی ٹیکسٹائل نمائش کا انعقاد۔ پاکستانی مصنوعات خصوصی توجہ کا مرکز۔ اور 13,000 فٹ بلند نوری ٹاپ پر ایک ہفتے سے محصور چرواہوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گلیشیئر کی زد میں آ کر بڑی تعداد میں بھیڑ اور بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل تمام خبریں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی خود کفالت اور خود انحصاری کے حصول اور درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اور مساق معیشت کی تجویز کا اعادہ کرتے ہوئے غربت اور مہنگائی میں کمی کے لیے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔
वज़ीर आज़म ने साहिब सरवत अफराद पर टैक्स आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हमेशा मुश्किल वक्त और चैलेंजेस में गरीब आदमी ने कुर्बानी दी, आज साहिब सरवत अफराद को कुर्बानी देना होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक फैसलों से आगाह करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने अपने पहले बजट में माशी विजन दिया है। हमारा मकसद अवाम की मुश्किलात का इजाला, महंगाई का बोझ कम करना और माशी इस्तेकाम है। साहिब सरवत लोगों को अब किरदार अदा करना है। बड़ी सनतों पर गुर्बत में कमी लाने का टैक्स लगाने का फैसला किया है। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर, और इनमें ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा केमिकल्स, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुर्बत और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मिसाक मईशत जरूरी है। सालाना 200 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, जिसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि साहिब सरवत लोगों पर लगाए गए टैक्स से हासिल होने वाली रकम सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह के कामों पर खर्च होगी। एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से शराइत तय हो चुकी हैं। माजी की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। हमने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले किए। हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। ज़रूरी इस्लाहात वो करके हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये था सख्त फैसले करें और पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाला दें। पाकिस्तान को इन संगीन ख़तरात से बचाने के लिए कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने जुर्दमंदाना फ़ैसले किए, जिससे यकीनन शॉर्ट टर्म में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे, बल्कि पाकिस्तान कायदे आज़म की मंजिल पर रवां दवां होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट की तैयारी में माशी टीम, माहिरीन और तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बजट में किए जाने वाले इक़दामात पाकिस्तान को माशी खुद इन्हिसारी की मंजिल पर गामज़न करेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गवादर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गवादर में फिशर कॉलोनी के लिए 200 एकड़ ज़मीन देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और गवादर के अवाम के मसाइल हल करना हमारी तरजीह है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्वादर और बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं और मेरे दौरे का मकसद भी ग्वादर और बलोचिस्तान के अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क कब तक कर्जों पर चलेगा, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि हमें सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में खुद कफील होना होगा और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। चीन ने उस वक्त आके हमारा हाथ थामा। सऊदी अरब ने उस वक्त $1.5 अरब हमें कैश दिया और तेल मुफ्त दिया। इस तरह और भी हमारे जो अमारात, कतर, तुर्की मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के बड़े साथी रहे। सऊदी अरब ने आपको जब भी आपकी मदद की, कभी आपसे सियासी उन्होंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई। चीन ने कभी शर्त नहीं लगाई, अमारात ने कभी शर्त नहीं लगाई, तुर्की ने कभी शर्त नहीं लगाई, कतर ने कभी शर्त नहीं लगाई। तो आज हमें ज़रूरत है सरमायाकारी की,
آج ہمیں ضرورت ہے کہ لاکھوں کروڑوں عوام کو ان کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کی، روزگار دینے کی، مہنگائی کو کم کرنے کی میں اپیل کرتا ہوں. اپنے سے زیادہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ماہی گیروں کے مسائل کا حل اور ان سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہمارا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی کے منصوبوں میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. ماضی میں جائے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا. اسی طریقے سے بجلی کا معاملہ ہے. کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا. 100 میگا واٹ بجلی لانے کے لیے ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماہی گیروں کو کشتیوں کے 2000 انجن میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی وزراء سمیت تمام ادارے بلوچستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں. جب تک گوادر کے بسنے والے اور بلوچستان کے عوام جب تک آپ کی جو ضروریات ہیں آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ کو قلبی اطمینان نہیں ملتا، باقی تمام ترقیاتی کام جو ہیں وہ پھر بے معنی رہ جائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گوادر یونیورسٹی کے حوالے سے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ماہی گیروں کی کالونی کے لیے 200 ایکڑ زمین فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ گوادر کی ترقی بلوچستان اور پاکستان کی ترقی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی بجٹ میں گوادر کے مختلف منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے. گوادر سینٹر میں موجود مقامی ماہی گیروں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. انہوں نے 1 ماہ کی قلیل مدت کے دوران گوادر کے دوسرے دورے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انڈس ہسپتال کے مابین عالمی معیار کی صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے. ہسپتال گوادر کے مقامی افراد کو علاج معالجے کی جدید سہولتیں فراہم کرے گا. اس موقع پر وزیر اعظم کو گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، جس میں انہیں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پاور پروجیکٹس، انفراسٹرکچر اور دیگر منصوبوں پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. اس سے بڑی اور ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ پیسہ بھی آیا ہوا ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی اور دس از ویری سیڈ اینڈ انایکسیپٹیبل. سوری، وی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے گوادر میں ملاقات کی اور صوبے کے انتظامی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے ضروری اشیاء پر ٹارگیٹڈ سبسڈی اور بلوچستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایات کا خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ نے گوادر کی ترقی کو ترجیح دینے اور 1 ماہ میں دوسرے دورے پر بھی خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر میں ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منصوبوں میں تعطل اور مجرمانہ غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کے لیے فوری انکوائری کی جائے. گوادر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی اور بجلی کی فراہمی کے منصوبوں میں مزید تاخیر قبول نہیں. پورے بلوچستان میں آف گرڈ بجلی کے منصوبوں کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے. پانی کی گھر گھر فراہمی کے لیے پائپ لائنز کے نظام کی بہتری کے ساتھ گوادر میں یومیہ 12 لاکھ گیلن پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ کی جلد مکمل یقینی بنایا جائے. انہوں نے شمسی توانائی کے 62 میگا واٹ منصوبے سے متعلق رپورٹ بھی 3 ہفتے میں طلب کر لی. وزیر اعظم نے کہا کہ سولر پینلز کی پاکستان میں تیاری یقینی بنائی جائے. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جولائی 2023 تک تکمیل کے ساتھ تربت اور کوئٹہ کے ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی پروازوں کو بحال کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے گوادر ہسپتال کی تکمیل ستمبر تک یقینی بنائی جائے اور 16,500 سے زائد کے گھرانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے مشکل فیصلوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. غریبوں پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. 13 شعبوں پر 1 سال کے لیے سپر ٹیکس عائد کیا گیا ہے. تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا. ایوان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ تمام اتحادیوں نے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا. جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی والے،
اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے. ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا, سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا. کہاں 40 ارب روپے میں پوری سول حکومت چلتی ہے اور کہاں 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان صاحب کے پروگرام کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل میں دی جا رہی تھی. وہ ہم نے ایک مشکل فیصلے لیے. وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں معیشت کے تمام شعبوں پر توجہ دی گئی ہے. خاص طور پر زرعی خود کفالت کے لیے کسانوں کو بھرپور مراد دی گئی ہیں. کاٹن سیڈز کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا تھا, بجٹ کے اندر کھل پہ بھی ٹیکس ہٹا دیا ہے. کاٹن کیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہٹ گیا ہے. اس سے زیادہ کسان دوست بجٹ میرے خیال سے پچھلے 10-20 سالوں میں پاکستان میں نہیں آیا ہوگا. ملک جو ہے وہ خوردنی تیل میں خود کفیل ہوگا. ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گندم میں خود کفیل کریں گے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بجٹ میں غریب اور کمزور طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے. غریبوں کے اوپر کم سے کم برڈن کرنے کی کوشش کی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ایک سستی پیٹرول ڈیزل اسکیم شروع کری ہے. 80 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ لوگ ہیں. 16 ارب روپے ان کو ایکسٹرا دیے گئے. اس کے علاوہ 40 لاکھ لوگ اب تک ہم کو میسج کر چکے ہیں 786 پہ, اور جس نے نہیں کیا ہے 40,000 سے کم آمدن کے لوگوں کو ان ہر گھر کے اندر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کریں. 10 لاکھ لوگوں کو ان سے ہم رجسٹر کر چکے ہیں اور ان کو بھی اس مہینے پیسے چلے جائیں گے. اسی طرح یوٹیلیٹی اسکورس کارپوریشن پہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک پروگرام کیا ہے جس کے تحت آٹا, چینی اور گھی سارا سال سستا دیا جائے گا. وزیر خزانہ نے کہا کہ امیروں اور بڑی کمپنیوں پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے. اس کے ساتھ دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ نے بجٹ سیشن کے دوران ڈیوٹی دینے والے قومی اسمبلی, سینٹ, پی ٹی وی نیوز اور دوسرے اداروں کے ملازمین کو 2 اعزازیے دینے کا بھی اعلان کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے ہوگا. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف, سردار ایاز صادق اور سید خورشید احمد شاہ نے کہا کہ وسائل کے درست استعمال کے ساتھ ٹیکس چوری نہ ہو تو پائیدار ترقی کی منزل حاصل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج چیلنجز درپیش ہیں. راہیل انصار کی یہ رپورٹ دیکھیے. قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملکی معیشت کی نازک حالت پر تمام اتحادی بے حد پریشان تھے. گزشتہ حکومت نے ملکی معیشت میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں. جس ملک میں صرف امپورٹ میں $3 بلین کسٹم ڈیوٹی کا لاس ہو, اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ ہر وقت جو ہے بھیک ہی مانگتا رہے گا. وہ ہمارے ملک کے اندر ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس کچھ کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایمانداری کی ضرورت ہے. آبی وسائل کے وفاقی وزیر سید خورشید شاہ نے کہا کہ معاشرے میں تمباکو نوشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے سگریٹ ساز اداروں پر ٹیکس بڑھایا جائے. یہ جو بجٹ ہے وہ تقریباً ایگریکلچر سیکٹر کے لیے فیوریٹ بجٹ ہے. 10 سال اگر آپ ایگریکلچر کو یہ سپورٹ دیتے رہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ 10 سال کے بعد پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. کوئی قرضہ نہیں مانگے گا, کوئی IMF کے پاس جائے گا, نہ ورلڈ بینک کے پاس جائے گا, اپنے کسانوں کے پاس جائے گا اور وہی اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا. اقتصادی امور کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے کہا کہ بہت مشکل معاشی حالات میں سب سے بڑا چیلنج عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ملکوں کا پاکستان پر کم ہونے والا اعتماد بحال کرنا تھا. جس دوران وہ دھرنے کی بات کر رہے تھے, ایجیٹیشن کی بات کر رہے تھے, انہی دنوں میں پاکستان کی ٹیم IMF سے نیگوشیٹ کر رہی تھی, انہی دنوں میں باقی ممالک سے نیگوشیٹ کر رہی تھی. انہوں نے پوری کوشش کی اپنے اقتدار کی خاطر, کبھی امریکہ کو برا, کبھی یورپین یونین کو برا, صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ حکومت سرخ روح ہوئی. بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے مہناز اکبر عزیز, مولانا عبدالاکبر چترالی اور وجیہہ قمر نے کہا کہ یہ متوازن بجٹ ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی میزانیے سے غریبوں کی مشکلات کم ہوں گی. راہیل انصار, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے, لیکن اداروں کو گالم گلوچ کرنے والوں کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیاست کو آلودہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عوام اس کے اصل چہرے کو پہچان چکی ہے. 20 سال تک ورلڈ کپ کو لے کر گھومنے والا 20 سال تک جھوٹ پر مبنی خط لے کر گھومے گا. وزیر داخلہ نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر جماعت کو احتجاج کا حق ہے, مگر یہ پرامن ہونا چاہیے.
मकामी हुकूमतों के निज़ाम की मजबूती का आज़म। पंजाब हुकूमत ने 4000 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स को 55 अरब रुपए के फंड्स देने का फैसला किया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सड़कों की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए 50 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम और खवातीन को स्कूटीज देने के साथ मुतादिद इक़दामात का ऐलान भी किया। तफसील बता रहे हैं ताहिर कलासरा। बजट इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि बैरूनी साजिश से शुरू होने वाले अब कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर अवाम इनकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में केपी पुलिस हथियारों से लैस थी और हमने उनके इंतशार फैलाने के सारे मंसूबे नाकाम बना दिए। हमजा शहबाज ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को तारीख आइन शिकन के तौर पर याद रखेगी। किसी की हट दर्मी, किसी की अना, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर आज इस मुल्क में कोई खूनी इंकलाब की बात कर रहा है, सियासी अपना जो है तहरीकें चलाना, लॉन्ग मार्च करना, इस मुल्क में तारीख जो है भरी पड़ी है, लेकिन कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर देखा गया है कि आप पाकिस्तान की दो इकाइयां जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, उनकी तमाम पुलिस जिनके अपना जो है वो लोडेड, उनके पास गने थी, असला था, ग्रेनेड थे, वो अपना जो है वो पंजाब में और इस्लामाबाद में दाखिल हुई कि इस मुल्क पर खुदा न खास्ता इस मुल्क की एटमी क़ुव्वत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, फौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे, और अगर मैं ना आया। हमजा शहबाज ने कहा कि तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल के बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया है और ये बजट हर लिहाज से मुतवाज़िन और आवाम दोस्त बजट है, जिसमें न सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए एशियाई खुर्दोनोश पर सब्सिडी बल्कि तरक्याती मनसूबों के लिए भी रिकार्ड फंड मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से सूबा भर के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। 200 अरब की सब्सिडी का फैसला काबीना के बाद किया, उसके बाद अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई, बजट इजलास भी पाए तकमील तक कामयाबी से पहुंच गया, गवर्नर भी आ गया। तो मैं समझता हूं कि जब अल्लाह की मखलूक की नीयत से आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। मुफ्त दवाइयाँ 2018 से पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी मिला करती थी अस्पतालों में, उसको यकमुश्त ख़त्म कर दिया गया। 1 जुलाई से पंजाब के 36 अजला में तमाम DHQ, THQ हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवाइयाँ और कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला ने अवाम दोस्त बजट की मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों, अरकान असम्बली और मुआशी टीम को सराहा। ऐवान में पंजाब मिनिस्टर तरमीमी बिल, असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटरीट बिल और दीगर बिलों की भी मंजूरी दी गई। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून समेत इत्तेहादी जमातों ने मुल्क बचाने का फैसला करते हुए रियासत को सियासत पर तरजीह दी है। वफाकी वज़ीर की कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू और दीगर मसरूफियात की तफसील ज़ीशान अहमद खान से जानिए। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना एक मुश्किल फैसला था, ताहम कौमी मफाद में ये फैसला करना पड़ा। किसी की कोताही, नाकामी, गलती या नालायकी उसका ढोल अपने गले ना डालें। किसी को शौक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कि वो अपने पॉलिटिकल क्रेडिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। हम एक सियासी जमात नहीं है, हम सियासी जमातें हैं। हमने ये कलेक्टिव डिसीजन किया है, बहुत भारी बोझ है, ये उतार के फेंकना आसान था और इसको अपने सर पे ले लेना बहुत मुश्किल था। वफाकी वजीर ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को CPEC में शामिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये मंसूबा CPEC के तहत मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ML1 मंसूबे के फेज 1 में कराची से रोहड़ी तक ट्रैक बनाया जाएगा। साद रफीक का कहना था कि हैदराबाद एयरपोर्ट को फाल करने के साथ साथ सक्खर एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिस पर काम शुरू करेंगे। मीडिया से बात करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कई मामलात पर बात हुई है और बेशतर मसाइल के हल के लिए भी इत्तफाक हुआ है। इससे पहले वफाकी वजीर साद रफीक ने MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की। ख्वाजा साद रफीक ने अपने वफ्द के हमरा कराची में सिंध के वजीर आला
सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस मौके पर इजलास में सिविल एविएशन का सहवन हैदराबाद और थर के माई बख्तावर एयरपोर्ट्स को बहाल करने के साथ साथ सिंध हुकूमत और सिविल एविएशन के दरमियान BRT रेड लाइन डिपो का मसला हल करने का भी फैसला किया गया। इजलास में थर में कोयले की कानकनी को खोखरापार सेक्शन तक मिलाने पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक बहरिया ने बहादुरी और कुर्बानियों से तारीख रकम की है। पाकिस्तान नेवी मुल्की समंदरी हुदूद के दिफा में कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरी है। उन्होंने ये बात नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में स्टाफ कॉलेज के शुरका से खिताब करते हुए कही। आर्मी चीफ ने जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने के लिए इकदामात पर तफसीली इजहार ख्याल किया। उन्होंने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में मयारी तरबियत के अमल को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर बुध को आने वाले ज़िलज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अफगान हुकाम कहते हैं कि मुल्क में अद्वियात और दीगर हंगामी सामान की कमी का सामना है। इस वजह से तबाहशुदा इमारतों और घरों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का अमल खत्म कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 10 लाख यूरो इमदाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान की जानिब से भी हंगामी बुनियादों पर इमदादी सामान रवाना किया गया, जिसमें अद्वियात, खेमे, तरपालें और कंबल शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को टेलीफोन किया और तबाहकुन ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस जाहिर किया और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के शाना बशाना हैं। गुलाम खान और अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पॉइंट्स को शदीद ज़ख्मियों के इलाज के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली के मकसद के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी है। वफाकी वज़ीर सैफरान मोहम्मद तलहा महमूद ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप अफगान नाज़िमुल उमूर सरदार मोहम्मद शकीब के हवाले की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दूसरी इमदादी खेप में खैमे और अशिया खुर्दनोश शामिल हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में मुनाकिदा होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद तलहा महमूद ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वजारत खारिजा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारे इमदादी सामान की फराहमी के लिए अफगान हुकाम के साथ करीबी राब्ते में हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए फौरी तौर पर इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDM में अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप 23 जून 2022 को बज़रिया सड़क भी रवाना कर चुकी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सफारतकारी में ख़वातीन की शमूलियत पायदार तरक्की, अमन और जमहूरियत के हुसूल में मददगार साबित होगी। सफारतकारी में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज हम सफारतकारी की तमाम सतहों पर ख़वातीन की मुकम्मल और मसावी शिरकत को फ़रोग़ देने का अहद करते हैं। दुनिया भर में ख़वातीन सफारतकारों की तादाद में इजाफा हौसला अफजा अमर है। ख़वातीन सफारतकारों की शरह 2018 में 16% से बढ़कर 2022 में तकरीबन 22% हो गई है। उन्होंने कहा कि सिनफी तासुब की गहरी जड़ें अब भी ख़वातीन की पेशावराना तरक्की में रुकावट हैं। सदर मुमलिकत ने तवक्को ज़ाहिर की कि ये पाकिस्तान और दुनिया भर में पायदार तरक्की और अमन के साथ साथ जमहूरियत के हुसूल के लिए हमारी रफ्तार को तेज़ करेगा। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रबानी खर ने दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से केगाली में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती और इक्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खारजा उमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने रवांडा में होने वाली दौलत मुश्तरका वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका मुस्तकबिल, रवाबित और मुश्तरका मसाइल के हल समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। हिना रबानी खर ने कहा कि जमहूरियत, कानून पर अमलदारी, बेहतर तर्ज हुक्मरानी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दौलत मुश्तरका का किरदार अहम है। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉर्ड तारिक अहमद, जमीका डोमेनिका और सेर एल्विन के वज़राए खारजा समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म जबर का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के भारतीय फौज और बदनाम ज़बान एजेंसियों ने कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां और घरों पर छापों का सिलसिला तेज़ करके खौफ व हिरास की शदीद लहर पैदा कर दी है। श्रीनगर, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम और दीगर अजला के कई इलाकों के मकीनों ने ज़राए इब्लाग को बताया कि भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA के एहलकारों ने वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के ज़िला कठुआ में मुतादिद मकामात पर घरों पर छापे मारे और मकीनों को हिरासा किया।
जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा इलाके में जाली मुकाबलों के दौरान कश्मीरी नौजवानों के बेदरेग कत्ल पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि फौजियों के हाथों कश्मीरियों का मुनज़्ज़म कत्ल मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी जानिब फिस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने और इलाके में हालात मामूल पर लाने के अपने झूठे दावों को दुरुस्त साबित करने के लिए दुनिया की बड़ी माशी ताकतों के ग्रुप G20 के 2023 के सरबराह इजलास की मेज़बानी मकबूजा इलाके में करने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में भारतीय हुकाम ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। और नाज़िल महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत करने वाले भारतीय सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को एक पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दिया है। ननकाना साहिब से जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। भारतीय सिख यात्री अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जय प्रकाश गुरुद्वारा जन्मस्थान की यात्रा का मौका मिलने पर बहुत खुश थे। उन्होंने गुरुद्वारा जन्मस्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। मन की बहुत तमन्ना सी कि ननकाना साहब दे असीं दर्शन करिए। इन्नी खुशी हो रही है कि मैं अपने मन की इच्छा बयान नहीं कर सकती कि बाबा जी के दर्शन करके बहुत इज्जत प्यार मिलता सानू इत्थे। कोई राहिश जी सानू कोई तंगी नहीं, कोई किसी चीज नहीं, सारा परिवार है। ननकाना इस तरह लगता है साडा अपना परिवार हो। सिख यात्रियों ने खाने पीने, रिहायश, मेडिकल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। पूरी कौम, ये अवाम, ये मेज़बान होती है और गले लगाकर इनको मिलती है। जब हमारे यात्री साहबान यहाँ से वापस जा रहे होते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं। पाकिस्तान हुकूमत दा सिक्योरिटी दे प्रबंध, खाने पीने दे प्रबंध बहुत ही वधिया, बसां दे प्रबंध बहुत ही वधिया। सानू बहुत वधिया लग्या, बहुत वधिया प्रबंध है इत्थे। पाकिस्तान आए हुए भारतीय सिख यात्री मुख्तलिफ शहरों में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 29 जून को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। ननकाना साहब में 3 रोज के कैंप के दौरान भारतीय सिख यात्री शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों की यात्रा और वहां अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब मौसम की सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं कासिम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें कि मानसून की मुतवक्का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। प्री मानसून बारिशों ने इशारा दे दिया, अब के सावन बरसा तो बहुत बरसेगा। हुकाम ने जल थल एक कर देने वाली बारिशों से निमटने के लिए पेशबंदी शुरू कर दी। इस्लामाबाद में मानसून के उन्वान से मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में इंतजामात का जायजा लिया गया। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदामात की जरूरत है। इंसानी जिंदगियां बचाना सबसे अहम है। मौसम का हाल बताने वालों ने शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया तो फ्लड कमीशन ने अपनी तैयारियों से भी आगाह किया। इरिगेशन स्ट्रक्चर्स की हमने देखभाल करनी है। अगर वहाँ पे कोई वल्नरेबल एरिया है तो उसको हमने स्टोन पिचिंग के जरिए और फ्लड फाइटिंग मटेरियल के लिए स्टॉप करना है। शहरी इलाकों में जहाँ पे पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है उसको हमें इंश्योर करना है। 29-30 से हल्की बारिशों से स्टार्ट होगा, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें ज्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में स्पार्को, CDA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि मानसून के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया जाए और हंगामी सूरत हाल में अवामी इतला के मौसर निज़ाम बिलखसूस मीडिया के जरिए आगाही को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। दादू मोहनजोदाड़ो 46, जैकबाबाद, सिब्बी, मिट्टी, शहीद में नज़ीराबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट किया और अब चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ये कहते हैं कि गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्क सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यरदाकिल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि FIA, नादरा और तुर्क इमिग्रेशन इदारे मिलकर हिकमत अमली तय कर रहे हैं। इदारों के दरमियान बेहतर ताउन से इन चैलेंजेस पर काबू पाएंगे।
वज़ीर दाखिला ने तुर्क सफ़ीर के ज़रिए वज़ीर दाखिला सुलेमान सोइलो को पाकिस्तान दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से इंटरनेशनल रेड क्रॉस के वक्त ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और खिदमात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। अब्दुल कादिर पटेल ने रेड क्रॉस की काविशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे में यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा है और मुस्बत केसेस की शरह 2.2% तक पहुंच गई है। तफसील सदफ अफजल से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह में फिर से इजाफा हो रहा है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 13,941 टेस्ट किए गए, जिनमें से 309 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एक बार फिर कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बाद वजारत सेहत ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग निज़ाम को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि वायरस की रोकथाम के लिए मुश्तरका तौर पर अमली इकदामात को यकीनी बनाना होगा। वजीर सेहत का कहना है कि ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, जबकि तमाम शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना के फैलाव से बचा जा सके। शहरी पुरहजूम जगहों पर एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 5 ज़रूरी अशिया पर खुसूसी रिलीफ दिया है। पैकेज में शामिल अशिया ज़रूरिया के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशों के लिए इक़दामात लिए तो सबसे पहले गरीब तबके का सोचा। उन्हें ये फिक्र दामनगीर थी कि महंगाई की लहर में कहीं गरीब का चूल्हा ना बुझ जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चहलकदमी वफाकी हुकूमत की रिलीफ की बदौलत ही है। वज़ीर आज़म ने महंगाई की आलमी लहर से मुल्क को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। नया वफाकी बजट इस हकीकत का आईनादार है जिसमें अमीर तबके पर बोझ डाला गया जबकि आम आदमी को रिलीफ दिया गया। मजीद रिलीफ के लिए सस्ती अशिया की फराहमी का प्रोग्राम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम से मोहब्बत के जज्बे के तहत उन्हें रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर रिलीफ पैकेज दिया जो यूटिलिटी स्टोर्स पर कामयाबी के साथ चल रहा है। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के 20 किलो आटे के थैले पर 300, घी पर 250, चावल पर 45, दालों पर 20 रुपए और चीनी पर 15 रुपए फी किलो तक सस्ता दिया जा रहा है, जिससे लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए से कम करके 800 और चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए फी किलो दी जा रही है। इसके साथ चावल 45 रुपए रियायत के साथ 155 रुपए में दस्तयाब है, जबकि घी मार्केट में 550 है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए किलो मिल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त सब्सिडी से रिलीफ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सस्ते आटे की फ्राहमी समेत बुनियादी अशिया पर बड़ा रिलीफ दिया गया है। कोहाट से असद नौशाद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के कम आमदनी वाले अफराद के लिए वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का चीनी, घी और आटे पर रिलीफ पैकेज को हाट में भी यूटिलिटी पर पहुंचा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर घी फी किलो 250 रुपये, जबकि चीनी 15 रुपये सस्ती फराम की जा रही है, जबकि आटे के 10 किलो थैले पर भी तकरीबन 150 रुपये से ज़्यादा रियायत दी जा रही है। बाज़ार की निस्बत यहाँ पर घी काफ़ी सस्ता और बारियायत और बआसानी मिल जाता है। तकरीबन 250 रुपये का फ़र्क है घी में बाहर की निस्बत, और बाकी दाली वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह दी गई है। हवा में भी सहूलतें उन लोगों को जी तकरीब आदमी के बहुत ज़रूरत है, जो सही नहीं ये मतलब एहसान क्यों मिलना पे है। यूटिलिटी स्टोर में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सहूलत भी है, चीज़ में रेटों में भी बहुत फ़र्क है। डेरा डेरा शुक्रिया दमू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पारा। इस रिलीफ से फ़ायदा उठाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद है, जबकि घी, चीनी, आटे के अलावा दालों पर भी खसूसी रियायत दी गई है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ कहते हैं कि कानून की तालीम किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। गैर मयारी लीगल एजुकेशन की वजह से इंसाफ की फ्राहमी पर असर पड़ रहा है। इस्लामाबाद में खुशाब मर्दान को हाट चार सद्दा मानसहरा और रैबटाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफूद से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बेहतरीन कानूनदान थे, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के इफ्तिताह से कानून की तालीम के शोबे में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर ने बार एसोसिएशंस में ग्रांट एंड एड के चेक्स तकसीम किए। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक कहते हैं कि माली साल के बजट में विद होल्डिंग टैक्स और स्टेटमेंट की शराइत ख़त्म करना हुकूमत का काबिल तहसीन फैसला है। अपने बयान में उनका कहना था कि IT और टेलीकॉम सेक्टर की मुश्किलात का इदराक है, हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत IT की तमाम तजावीज़ पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद से ही बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं। सूबाई वज़रा अवैस लगारी, अताउल्ला तारट और मलिक अहमद खान ने कहा है कि करप्शन का नारा लगाने वालों की अपनी करप्शन कहानियां आश्कार हो रही। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने ईमानदारी का नाम नेहाद लिबादा ओढ़ रखा है। हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। साबिक़ा दौर में तहाइफ के नाम पर करप्शन की गई। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। पंजाब के वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी ने कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अर्बन और रूरल इलाकों को दोबारा तकसीम किया गया है। इस इक़्तिदार को हम हर यूसी लेवल तक भावलपुर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, पिंडी के अंदर, चकवाल के अंदर और देरा गाजी खान के अंदर एक ही किस्म का इख्तियार नीचे यूसी लेवल तक हम लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हुकूमत की 1-1.5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वज़ीर दाखिला अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत चली गई लेकिन इनकी हेरा फेरी नहीं गई। आपके ज़मान पार्क लाहौर के घर की तामीर से लेकर आपके बनी गाला के 400 कनाल के महल के इखराजात तक मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है। अब आप जमानतें कराते फिरते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा इमरान खान साहब को देख के कि वो भी आज गर्मी के मौसम में किसी अदालत में गए हैं। सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब के 8 अजला टूल प्लाजों की वजह से मुतासिर थे। जिन टूल प्लाजों से अवाम को मुश्किलात थीं उन 11 टूल प्लाजों को ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा पंजाब असम्बली के अमूर से मुतल्लिक भी कानून साजी की गई है। पंजाब के अंदर एक किया गया था पर्सन स्पेसिफिक कि एक मेरा अपना सेक्रेटरी होगा और उसी के ज़रिए मैं कुछ करूँगा, और हुकूमत क्योंकि उसकी मेरे साथ हॉस्टिलिटी है तो किसी भी सूरत में चाहे वो आप उनके इत्तेहादी हों या अपोजिशन में हों तो एक फिफ्डम और एक आइलैंड क्रिएट किया गया था जो कि ना आइनी एतबार से दुरुस्त था ना कानूनी एतबार से दुरुस्त था, तो उस हुक्म को दूर किया गया। उन्होंने कहा कि अतवार के रोज़ किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलकत दाखिला अमूर अब्दुर्रहमान कांजू ने लोधरा की तहसील कहरोर पक्का में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इमरान नियाजी ने मुल्क को मौशी तौर पर तबाह कर दिया है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूरे लोधरा में स्पीडो बसें चलाई जाएंगी और कहरोर पक्का में सीवरेज का मसला भी हल किया जाएगा। सिंध में पहले मरहले में 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को होंगे। सखर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। तफसील बता रही हैं कुलसूम सिद्दीकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंध के 14 अजला में पहले मरहले में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का वक्त नज़दीक आने के साथ ही दीगर शहरों की तरह जिला सखर में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवारों समेत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 267 यूनियन काउंसलर, यूनियन कमेटीज, टाउन कमेटीज, म्यूनसिपल कमेटीज के लिए जनरल काउंसिल 1315 और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर की नशिस्त पर 183 उम्मीदवार बल्दियाती मोरका में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सखर को 3 टाउन्स मकीशा, जियशा और निसार अहमद सिद्दीकी में तकसीम किया गया है। तीनों टाउन्स 32 यूनियन कमेटीज पर मुश्तमिल हैं। शहरी सतह पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले का इम्कान है। जिला सखर की आबादी 14,88,372 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि वोटर्स की मजमूई तादाद 8,07,540 है, जिनमें 4,36,873 मर्द और 3,70,667 खवातीन वोटर शामिल हैं। कुलसूम सिद्दीकी, PTV न्यूज़, सखर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की रस्म कुल नवाब शाह में अदा की गई। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की जरदारी हाउस आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार खालिद मक्सी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उनकी वालिदा के लिए फातिहा खानी की।
नाज़रीन, कराची में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस का अहम इकदाम, थानों में कैमरों के साथ पुलिस मोटरसाइकिलों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। सैयद जहांगीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर कायद में जिला बस्ती के थानों की निगरानी की जाएगी। इस सिलसिले में जिला के तमाम थानों के दाखिली और खारजी रास्तों, ड्यूटी ऑफिसर और हेड मोरर के कमरों और लॉकअप समेत दूसरे मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। तमाम थानों के अंदर हमने कैमरे लगवाए हैं। रिपोर्टिंग रूम में जो हमारा पुलिस का स्टाफ मौजूद है वो बेहतर तरीके से डील कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लॉकअप में कोई इलीगल कस्टडी तो नहीं है, क्या यूनिफॉर्म सबने पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, क्या गश्त के टाइम पे एसएचओ बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा। डकैती और राहज़नी की रोकथाम के लिए खुसूसी फोर्स की मोटरसाइकिलों में नस्ब ट्रैकर का सॉफ्टवेयर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से चलाया जा रहा है, जो पेट्रोलिंग अफसरान की निगरानी समेत उनको बर वक्त अहकामात और हिदायत जारी करने में भी कारआमद साबित होगा। जिला बस्ती के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की फ़ालियत को पुलिस हकाम की जानिब से भी सराहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सेंटर की कारकर्दगी से न सिर्फ जराइम का सदेबाब किया जा सकेगा बल्कि अवाम और पुलिस के दरमियान भी फासले कम होंगे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के 25 अजला में पीर से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। इस हवाले से वज़ीर आला महमूद खान ने मुहिम का इफ्तिताह किया। 5 साल से कम उम्र 25,80,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मकसद के लिए 11,389 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने माली साल 2022-23 का बजट मंजूर कर लिया। ईवान ने 64 सरकारी महकमों और इदारों के लिए 1,332 अरब रुपए के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी है। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के तखफीफ ज़र की तमाम तहरीक वापस ले ली गई। बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने मजदूर की तनख्वाह 21,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने का ऐलान किया। सूबाई हुकूमत डेरा इस्माइल खान मोटरवे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 114 अरब रुपए का कर्जा ले रही है। सेनेट की कायमा कमेटी साइंस और टेक्नोलॉजी को बताया गया है कि बिजली की बचत के इदारे नीका का कंट्रोल वजारत साइंस को दे दिया गया है। सरदार शफीक तरीन की ज़ेर सदारत मजलिस कायमा के इजलास में बताया गया कि इदारा तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तामीरात, सनती और ज़रई शोबे में बिजली की बचत पर काम कर रहा है। कमेटी को पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में भर्तियों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। और नाज़रीन, 13,000 फुट बुलंद सियाहती मकाम नूरी टॉप पर एक हफ्ते से महसूर चरवाहों को कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। शदीद सर्दी और बर्फबारी ग्लेशियर की जद में आकर चरवाहों की 1,000 से जायद भेड़ बकरियां हलाक हो गई थीं। आपको बताएं कि सियाहती मुकामात बाबूसर टॉप, नूरी टॉप और नूरी तार में जून के महीने में गैर मुतवक्के रिकॉर्ड 5 फीट बर्फबारी हुई है, जिसके बायस चरवाहे अपने जानवरों समेत महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन KDA और मकामी पुलिस ने हिस्सा लिया और महसूर चरवाहों को महफूज मकामात पर पहुंचाकर खुश्क खुराक मुहैया की। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दरपेश मौशी चैलेंजेस पर गौर के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास ब्रसल्स में हो रहा है। रूस की जानिब से गैस की बंदिश, इक्तिसादी सूरत हाल और ग़ज़ाई बहरान इस इजलास का अहम एजेंडा है। रूस की जानिब से गैस सप्लाई खत्म या कम कर देने की वजह से 12 यूरोपीय मुल्कों को तवानाई बहरान का सामना है और इस मामले पर यूरोपीय यूनियन और मॉस्को के माबैन तनाव बढ़ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइंस गैस की 40% तरसील कम कर दी थी। इससे पहले पोलैंड, बुल्गारिया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क और फिनलैंड को मुआवजा अदा करने के नए निज़ाम के तहत अदायगियां न करने पर गैस की सप्लाई बंद की जा चुकी है।